I must welcome you, Niyati ma'am, to this Thank you. special High Performance Youth Summit. This is me, Parul Pandey, and along with Nareen sir, we will be connecting with you. So, Thank you. the students are saying a very good morning to you, and they're appreciating how you look and the work that you have done. So, Niyati ma'am, when we talk about spreading joy, spreading love through education, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है? First of all, good morning, everyone, whosoever is listening. I'm Dr. Niyati Chitkara, and I'm a teacher at heart. And education की importance जो है वो हमारी life में इसलिए है because it helps us to become a better person. And a positive behavior change is something, which everybody looks up to when, people join schools because they want to, move to the next level, see positive changes happening to them. So education की importance हर चीज में है. And, it is said that, if you want to give something to your children, the biggest investment is education, because that's one thing which will always remain with you. It is irrespective of any market upheaval that happens, just like COVID aa gaya, but education was always there. So I think the only thing that helps you to sustain and fight your battles in life and obstacles in life is education. Wow. When we talk about battles, Narendra sir ने आज काफी battle face कर लिया technical issues के साथ. Narendra sir, I hope you won the battle and the stage is all yours. Thanks a ton. So Niyati, welcome to this beautiful High Performance Youth Summit. Thank you. एक छोटी सी बात पूछता हूँ शुरुआत में, what made you say yes? Because I assume that there are a lot of things on your plate. You are a very, very busy lady. You run a large organization, and taking time out is not always easy, and that too on a working day and a working time. So, क्या था वो जिससे आपने हाँ बोला? I think the youth part of the summit is something which was very exciting, because somewhere, youthfulness in youth is something that has always intrigued me. And I think this 2020, your title says HPYS 2020. So this 2020 is very interesting because it's full of challenges. And I think youth is all about dealing with challenges and coming out of those challenges and solving problems. So I think that's one thing which really excited me. Oh, beautiful. Thank you. Tell us a little about your work at Chitkara. What does Chitkara do and what's your role over there? So Chitkara, basically, I come from an organization which has two universities, one in Punjab, another in Himachal Pradesh, and two international schools. So I take care of school education, and I'm a principal in one of the schools. And the best part about Chitkara is, the full form of Chitkara is, Chit Jama Kara, which is like, जिस चीज में आपका मन लगे. So that is what is, something, doing things with your heart and soul involved is what Chitkara is all about. And I primarily take care of school education, and we've tried. So I started this, me and my team, of course. We started the school 15 to 17 years back, and we had no idea how schools were run. So जब आपको कुछ नहीं आता, फिर आप क्या करते हो? आप research करते हो. So that's what we started doing. We started looking for the best schools across the country, overseas, in our region, and we were very clear we will not copy anything, and we will build a different school. So that's how the journey started. And so instead of building a K to 12 school, we've built a reverse school, which is university to K. तो ऐसा स्कूल जो हेल्प करे लाइफ आसान करने में, जॉब दिलाने में, employability focused ho, so research oriented ho. So that's what we've come up with. Wow, brilliant. I have a dear friend of ours, Sri Sunil Handa, who stays in Ahmedabad. Okay. Who runs a school called Eklavya School. Have you heard about that school? I have heard about the school. Yes. So I heard the name. You know how it came about? No, sorry, I have no idea. So he was the owner of a beautiful company called Core Parental, sold it for 1,200 crores. Each brother got about 600 crores. There were two brothers. And then he said, I want to dedicate myself to education. वो IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर भी हैं. तो उन्होंने अपने सब बच्चों को एक लेटर लिखा
कि अगर कोई भी 25% सैलरी में मेरे पास 2 साल काम करने के लिए तैयार है और कुछ बिना पूछे मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है कि मैं क्या काम कराऊंगा, लेकिन 2 साल पागलों के जैसे अपने को काम करना पड़ेगा और जीना पड़ेगा, तैयार है तो आ जाओ. And he said, unfortunately, 5 of them replied saying yes. Okay. And with them, these 5, they traveled the whole world for 2 years. They went and stayed in London in Eton for about 2 months. Right. Eton is a place from where 40% of Supreme Court judges, 30% of prime ministers have come. तो उन्होंने एक रिसर्च किया कि ये जो स्कूल्स हैं वर्ल्ड में जहां से बेस्ट लोग निकलते हैं, क्यों निकलते हैं? I mean, is it because of the kind of students who come? Is it the teachers? Is it the infrastructure? Is it the medium? Is it the structure? And learning from that, he created Eklavya School in Ahmedabad. Wow. So बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर था. कभी अगर जाने की इच्छा हो तो बताना. I will. Sure. You know, we love seeing schools, so we definitely want to. Definitely. Beautiful. आपने एक बात कही, टीम वर्क. Right at the beginning, you said me and my team created this, and in the beginning we didn't know anything. Yeah. So, there are two parts now. A team is as good as the leader, and the leader is as good as the team. So now you are the leader of the team. तो आप एक अच्छे टीम मेंबर में क्या ढूंढते हो और क्या खोजते हो? मुझे लगता है कि ना जो टीम होती है वो एक फैमिली की तरह होती है. And सारे family members same नहीं होने चाहिए. They should be different, because only then you can, offer a lot of variety, and you learn to deal with different kind of temperaments. So I think team worker ऐसा होना चाहिए जो अलग हो, जिसके perspectives अलग हो, so that you're not listening to the same thing every time, same kind of perspectives every time, because then your growth stops. मुझे लगता है कि वो चीज जरूर टीम में अलग होनी चाहिए, और टीम मेंबर का विजन कॉमन होना चाहिए. देयर शुड बी समथिंग कॉमन एज वेल. तो ये ना हो कि आप कुछ बोल रहे हो, वो कोई और अलग दफली बज रही है, सो दैट डजंट वर्क टुगेदर. सो मुझे लगता है कि टीम मेंबर्स सेम भी होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ विजन, बट येट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. Beautiful, brilliant. Our family is running a huge educational initiative. Right. Success makes some people arrogant. Success makes some people complacent. Comfort में चले जाते हैं. And it's very rare that we find success bringing in humility at the same time retaining ambition and drive. From what I hear from Jyotsna and Amit, my two colleagues over here with whom we have put this thing together, they say with very deep conviction that in this entire family of Chitkara, there is tremendous humility, at the same time huge ambitions. तो ये कैसे करते हो आप? मतलब क्या फिलोसॉफी है जिसकी वजह से ये संभव हो पाता है आपके लिए? I think it percolates from our founders. They are teachers. They've spent their life in government schools, and then eventually in government universities, and then they started their own ventures. So जब आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पैर जमीन पे ही रहने चाहिए. बहुत हवा में उड़ के कुछ मिलता नहीं है, फ्रैंकली. और दूसरा ये कि जब तक आप बेसिक लेवल पे काम नहीं करते और लोगों के दिल को नहीं छूते, वो बड़ी चीजें आई थिंक करना लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो छोटी छोटी चीजें करना इंपॉर्टेंट है. वो छोटी छोटी हैप्पीनेसेस जो हैं वो बड़ी हैप्पीनेस में कन्वर्ट होती हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है ना, इट कम्स फ्रॉम आवर फाउंडर्स, एंड वो टीचर्स रहे हैं और वो आज भी टीचर्स हैं. आई थिंक हमारी फैमिली के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है जब एक ऐसे परिवार के बच्चे को जॉब मिलती है जिसके पेरेंट्स ने लोन लिया है या बहुत डिफिकल्टी से एजुकेशन को स्पॉन्सर किया है, जब उसके घर में अपॉइंटमेंट लेटर जाता है. आई मीन दैट्स द बिगेस्ट किक ऑफ आवर लाइफ. सो आई थिंक ये चीज वी फील, बिकॉज हमें समझ में आता है कि कितनी दिक्कतें हैं, उसके बावजूद पेरेंट्स बच्चे पढ़ते हैं. And all stratas of the backgrounds from where students come from, and at times you really feel that जितना भी कर रहे हैं वो कम है. It is like that. So मुझे लगता है it comes from our founders. And अगर हम humility
एग्जिबिट नहीं करेंगे अपने एक्शंस में, अपने लाइफ में, व्हाट आर वी गोइंग टू टीच चिल्ड्रन? फिर बच्चों को ऐसे ही लेक्चर दे देने में कोई फायदा नहीं है, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम देन. So you cannot preach unless you follow yourself. Yeah. No, Niyati, to be very, very frank and honest with you, we have found that while the beginners, while those who have started an initiative, might remember their roots because they came from very, very humble backgrounds. मतलब कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है. Yeah. लेकिन अगले जनरेशन जो आती है ना, उनको शायद वो चीज ध्यान में नहीं है. They are born with that proverbial silver spoon, golden spoon. And when Jyotsna speaks about you, she speaks about there is so much abundance around, yet they are very grounded. And I sense a kind of a hero worship in her voice when she speaks about you and your husband. So how did the two of you manage to remain so humble? Again, I think it is all parenting, first of all, whether you achieve something in life or you don't achieve something in life. But it is more to do with the kind of parenting you had. So I think the credit goes to both of our parents, because our parents never, they were never there, with all, we were never brought up with all the, wealth and riches, around. And we were always, and still till date, we always earn, whatever we've done throughout our lives. So, there's always, crunch of resources, and you have to deliver in whatever best possible. So wo jo need hai na, wo badi zaruri hai. I tell parents in my school also कि क्यों ऐसा होता है कि जब जिस बच्चे के पास ऑलरेडी सब कुछ है, उसकी नीड खत्म हो जाती है पढ़ने की. तो बहुत, और जो बच्चा दिक्कत में पढ़ रहा है, उसके पास किताबें नहीं है, या उसके पास स्टडी रूम नहीं है, या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको एक ही चीज है जो ड्राइव कर रही है और पढ़वा रही है, वो है नीड. और जितना हम अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं, उतना वो नीड खत्म करते हैं. तो मुझे लगता है नीड ड्राइव्स एजुकेशन, नीड ड्राइव्स सक्सेस. वो नीड खत्म नहीं करनी चाहिए. और हमारा ड्यूटी ये है एज पेरेंट्स कि अगर हमारे बच्चों के पास सब कुछ है, तो वो नीड हम आर्टिफिशियली क्रिएट करें, पर वो नीड नहीं खत्म होनी चाहिए. तो अगर हमारे पास सब कुछ है, तो उसकी वैल्यू सिखाना बहुत जरूरी है. तो वो नीड आर्टिफिशियली जब तक इंजेक्ट नहीं होगी, नेक्स्ट जनरेशन जो है वो परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर करेगी, वो ग्राउंडेड नहीं रहेगी. और दूसरा, मुझे लगता है कि सक्सेस का मतलब लोगों के लिए अलग अलग है. कोविड ने हमें सिखाया है कि सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में हेल्थ है. सो भले कोई भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर वो हेल्दी है, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है आज की डेट में. सो सक्सेस के पैरामीटर्स, उसके मायने चेंज होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस चीज को सक्सेसफुल मानते हो. मुझे लगता है वो बंदा जो बहुत ज्यादा एजुकेशन में काम करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है सोसाइटी की, लोगों के बीच जा जाके उनके दिल को छूता है, उनकी लाइफ को इजी करता है. इतना स्ट्रेस है, मेरे पास स्कूल में कई बार बच्चे आते हैं, घरों में इतनी टेंशन होती है, तो अगर एक ऐसा स्कूल, ऐसा एम्बियंस, ऐसे टीचर्स जो उसको थोड़ी देर के लिए सुकून दे सकें, उसको वो चैन दे सकें, वो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस इन लाइफ. तो वो जरूरी है. What solid pieces of wisdom. I'll go back home and replay this last 5 minutes and listen to it many times. Very, very wise words indeed. Thank you. मेरे एक दोस्त है, उनका नाम है पीसी मुस्तफा. Okay. पंजाब में ये आईडी मिलता है कि नहीं मालूम नहीं. वो आईडी आटा, आईडी इडली की आटा, मेदू वड़ा आटा, वो बनाते हैं. आज उनकी कंपनी करीब 2000 करोड़ की कंपनी है. उनका टर्नओवर करीब 2000 करोड़ है. लेकिन उनके पिताजी गांव में खेत में मजदूर थे. और उनकी तमन्ना यही थी कि बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा बन जाए. और मुस्तफा एक दिन, मतलब आंखों में आंसू भर के मेरे से बोल रहे थे कि नरेंद्र, 4 साल मेरे माँ बाप ने एक दिन में सिर्फ एक बार खाना खाया है. क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रहा था. पढ़ाई के लिए जो खर्चा है, अगर 2 वक्त खाना खाते तो पढ़ाई नसीब नहीं होती. और अगर पढ़ाई करने तो 2 वक्त खाना नहीं मिलेगा, एक ही वक्त खाना मिलेगा. तो जब मुस्तफा को सबसे पहले एक ऑफर लेटर मिला एक कंपनी का, और उसने अपने पिताजी को दिखाया, पिताजी को इंग्लिश तो नहीं आती,
लेकिन पिताजी को नंबर्स तो आते हैं, 1 2 4 नंबर्स तो गिनना आता है। उन्होंने वो नंबर देखा और उन्होंने बोला है कि लगता है 1 0 गलती से उन्होंने ज्यादा लगा दिया। मतलब उनका फर्स्ट ऑफर लेटर था 36,000 रुपए साल का। इतना कोई नहीं देता है, ये पूरे साल का गलत होगा, ये कम अमाउंट होगा तुम्हारा। उनको जाके बोलो कि 1 0 ज्यादा लगा दिया। और पहली सैलरी जो मिली मुस्तफा को, वो उनके माँ बाप के पूरे जिंदगी की सेविंग से ज्यादा थी। बोले इतना फूट फूट के रोए मेरे पिताजी उस दिन कि हमारे पास भी पैसा होगा, मतलब अब हमको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सो आप जो कह रही हो ना नियति, जो एक गरीब घर से बच्चा आता है या जहाँ स्ट्रगल के बाद में माँ बाप उसके स्कूल का फी पे करते हैं, कॉलेज का फी पे करते हैं, और जब वहां उनको कोई ऑफर लेटर मिलता है, इट इज अमेजिंग, है ना। मतलब सिर्फ उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होती, इस बात का मेरे को विश्वास है कि उनका बहुत आशीर्वाद आप लोगों को भी मिलता है। बिल्कुल, आई थिंक वैसे भी आप लाइफ में जो भी बनते हैं, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आपके जितने आशीर्वाद इकट्ठे होते हैं वही आपको कुछ बना पाते हैं। एंड दूसरी एक और चीज है, आपने जैसे बोला कि यू नो फादर नंबर्स नहीं पढ़ पाते, लेकिन फादर को नंबर्स आते हैं बट भाषा नहीं आती है, समझ नहीं आती, एजुकेटेड नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में भी कि बच्चे पढ़ पाते हैं, पर मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनको कुछ नहीं पढ़ाई का मालूम है, और जब उनके बच्चे परफॉर्म करते हैं, यू नो अंग्रेजी नहीं आती पेरेंट्स को, पता नहीं क्यों एक स्टिग्मा है हमारे सिस्टम में, तो पेरेंट्स सर्कुलर नहीं पढ़ पाते, समझ नहीं पाते। जब समझ नहीं आती तो वो क्या करेंगे। छोटा एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे स्कूल में बच्चे येलो डे मनाते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर गया। अब जो पढ़ा लिखा पेरेंट नहीं है, उसको नहीं मालूम ये सब, तो टीचर क्या करेगी, जिसका पेरेंट तो बहुत स्मार्ट है उसको तो नंबर दे देगी, जिसके पेरेंट को पढ़ने की दिक्कत है उसको येलो डे का मतलब ही नहीं पता, आप उसको क्या पढ़ा रहे हो, यू नो। तो एजुकेशन का मतलब जो है वो सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, परिवारों तक जाना पड़ेगा। तो हमने भी यहाँ पे अपने ना इधर सिस्टम में एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है, और हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हर सर्कुलर का भाषाओं में ट्रांसलेशन पेरेंट तक पहुंचे। तो और फिर ट्रेनिंग्स पेरेंट्स की, कंप्यूटर चलाने नहीं आते, आई हैव अ पेरेंट जो कुक हैं घर में, उनको खाना बनाने के अलावा उनको कोई मोबाइल और कंप्यूटर चलाने नहीं आते, जब डिजिटल रिपोर्ट कार्ड आती है वो क्या करे, यू नो। सो वो चीजें, ये दिक्कतें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है ध्यान देनी। तो मुझे लगता है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और उस पेरेंट का जब बच्चा पढ़ के कुछ बनता है, आप सोच नहीं सकते वो क्या मोमेंट होगा। बिल्कुल, आई कैन इमेजिन। या वाओ। Now let's shift a little gears. Okay. As a woman, अगर मुझे सफलता पानी है, और आज यहाँ पे काफी नवयुवक और नवयुवतियां हैं, तो इन लड़कियों को, इन नवयुवतियों को, इन महिलाओं को क्या ध्यान में रखना चाहिए when they want to move ahead and you know, उनको भी सफलता की बहुत बड़ी उमंग है या कामना है, तो क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले तो अपने आप से क्लियर होना बहुत जरूरी है लाइफ में कि आप क्या चाहते हो लाइफ से। आपके अपने प्रोमिसेस जो आपने अपने आप से किए हैं वो बहुत जरूरी हैं। उनको लिस्ट डाउन करना, उन पे काम करना, उन स्किल्स को अक्वायर करना। यू नो, लोग बातें करते हैं हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, पर उसके बाद वो छोड़ देते हैं चीजों को। ना वो प्रैक्टिस करते हैं, ना वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, ना वो उसके रेलेवेंट एजुकेशन या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज करते हैं। तो पहले तो अपने आप से जो इंसान एक प्रॉमिस करता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं हम कुछ प्रॉमिसेस करते हैं अपने आप से, वो अपने आप पे उन प्रॉमिसेस पे टिके रहना। हम नहीं टिकेंगे तो दूसरे कैसे हम पे विश्वास करेंगे। हम कहते हैं जी हमें फलाने ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बट पहले हमें अपने आप को जवाब देना है कि हम कितने ऑनेस्ट थे। आई हैव यू नो सिचुएशंस जब यू नो आई हैव सीन वेरी एम्बिशियस गर्ल्स, यू नो, व्हेन दे गेट मैरिड वो सब छोड़ देती हैं। व्हाई? You know, so आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है। You know, marriage is a very important part of life, but it is not your life. You know, there's a lot beyond it. And अगर आप अपने promises अपने आप से
पूरे नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे चाहते हैं कि फैमिली आप पे विश्वास करे, आपको सपोर्ट करे, आपको स्पॉन्सर करे? ये पॉसिबल नहीं है। विश्वास जगाने के लिए आपको भी तो एक एफर्ट और एक वो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये एक चीज है जो लड़कियों को बिल्कुल अपने प्रोमिसेस, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप कल को आपकी नेक्स्ट जनरेशन आए, तो प्लीज आप कोशिश कीजिए कि आप बदलिए, और आपने जो फेस किया है आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ ऐसा ना करें। तो मुझे लगता है ये जो जितनी भी लेडीज हैं या यंग गर्ल्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्बिशन होना एक अलग बात है, उसकी तैयारी करना एक अलग बात है, उस पर टिके रहना एक अलग बात है, उसको पूरा करके नेक्स्ट जनरेशन को सौंपना अलग बात है। सो दैट्स अ मैसेज मेरी। ब्यूटीफुल। एक छोटी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछता हूँ आपको। जहां शादी हो जाती है, इन-लॉज का दिल बड़ा होता है, मन बड़ा होता है, उनको समझता है, तो वो अपनी बहू को या अपने घर में बेटी को प्रोत्साहन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। या ऐसा भी होता है कि इन-लॉज क्लोज्ड हैं या न्यूट्रल हैं, और एक तरीका है जिससे उनको भी मनवा लिया जाए, उनको भी समझा लिया जाए। तो मतलब हमारे हाथ में है क्या, महिलाओं के हाथ में है क्या? महिलाओं के हाथ में बहुत कुछ है एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक महिलाएं जितनी हैं वो 2 परिवार चलाती हैं। आई थिंक वी शुड बी सो हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव 2 फैमिलीज टू रन एंड टेक केयर ऑफ। तो पहली चीज तो ये है। और दूसरी, आई थिंक वेदर इट्स योर इन-लॉज और योर पेरेंट्स, in-laws are rather your parents in a very very different way, because वो ज्यादा टाइम आई थिंक एक जो लेडी है वो अपने in-laws के साथ स्पेंड करती है। If you see the conscious years of her in life period, if you analyze that, तो उस केस में भले पेरेंट्स हो या in-laws हो, you should have that spark in you ताकि वो कन्विंस हो सके। आपको उनको कुछ ऐसा तो यकीन दिलाना पड़ेगा कि देखिए मैं ये करना चाहती हूँ और इससे मेरी लाइफ खराब नहीं होगी, मेरी प्रायोरिटीज बैलेंस रहेंगी। वर्क लाइफ बैलेंस की तसल्ली देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ फैमिली सेटअप, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ वुमन्स शोल्डर। और हमारे इधर क्या है कि हम लोग तैयारी नहीं कराते फ्यूचर रोल्स के लिए, हम लोग तैयारी नहीं कराते, हम एक ही दिशा में चलते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो जबकि हमें मालूम है कि फ्यूचर में हमें बहुत कुछ करना है, हमें घर भी चलाने हैं, परिवार भी चलाने हैं, और हमें काम भी करना है। तो वो सभी की तैयारी जो यंग इयर्स होते हैं, स्पेशली पोस्ट टीनेज इयर्स होते हैं, उसमें जरूर स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज बाद में everybody faces difficulties. मुझे ये लगता है कि in-laws are parents too, so the approach is similar. Absolutely. Now, if the audience has any questions, you can start thinking about those questions and keying it. I have a few more questions for Niyati, which I'm going to ask her. Niyati, your life rotates around children. Right. In school, definitely, and you have a family whose life rotates around, let's say, the youth. Right. ये यूथ में आपको आज के दिन क्या चीज दिखता है जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, और कुछ ऐसा भी दिखता है क्या जिससे आप थोड़े मायूस होते हैं? यूथ में मुझे आज के दौर में the Googleness of youth is something which really excites me. They look for perspectives, they search perspectives. That's the best part. ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो मान लिया. That is one thing which I really like, because एक चीज के इतने नजरिए हो सकते हैं, एक टॉपिक के इतने नजरिए हो सकते हैं, तो वो मुझे लगता है that Googleness is something which is the best part of this generation. But one thing which is very scary is कि ये जनरेशन hearsay पे बहुत बिलीव करती है. ट्विटर पे कुछ चला तो they start believing in that. So research element जो है वो इस जनरेशन में अगर नहीं आया, तो ये जो पर्सपेक्टिव्स का वॉर है, परसेप्शन बिल्ड करना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कुछ भी बिना सोचे फॉरवर्ड कर देना, प्लेजरिज्म का ध्यान नहीं रखना, कुछ भी किसी का कॉपी करके इधर उधर कर, ये चीजें जो हैं ये थोड़ी सी मुझे स्केयर करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट जो इनकी क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, जो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है, ये सब आई थिंक द यूथ इज रियली रियली गुड एट.
आज सुबह ही मैंने कोई पोस्ट पढ़ा कि आज के दुनिया में स्ट्रेट फॉरवर्ड किसको बोलते हैं? जिसके पास कोई भी व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज आता है, स्ट्रेट दे फॉरवर्ड. Very well said. That's a new straightforward thing. So Yeah. somebody has asked a very beautiful question. How exciting, difficult, easy, complicated what is to take leadership at a young age? You know what, when we started our school, we were all very young, and education is supposed to be an area for a gray haired people. मतलब जो जितने बुजुर्ग हैं वो उतने अच्छे wise हैं, intelligent हैं या whatever. So when we started our school, everybody used to come and say कि अरे ये तो सब बच्चे हैं, ये क्या स्कूल चलाएंगे, and you know इतना, and when we started our school, none of us were B.Ed. So so हमने B.Ed, M.Ed, PhD सब during the school running की है, और हम आज भी पढ़ते हैं. You know, you can't run a school unless you feel like a student. जब तक आप एग्जाम नहीं देते और डर नहीं लगता, you know, that spirit should not end. तो जब हमें डर लगता है एग्जाम देने में, तो बच्चों को भी लगता है. तो आप अच्छा क्वेश्चन पेपर बना ही नहीं सकते जब तक आप खुद स्टूडेंट नहीं है. तो मुझे लगता है वो यूथफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और लोगों को यू नो, एक हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है माइंडसेट की, कि ये चीज तो यही बंदा कर सकता है, बट ऐसा नहीं है. बट दिस इज लाइक अ बिगेस्ट fight that me and my team we have you know experienced, and we are fighting it out. And I have a lot of young people in my team, because I think they're full of ideas, they're full of energy, enthusiasm, and fun. You know, they know how to enjoy their work. तो वो बोरिंग वर्किंग कल्चर नहीं है, बिकॉज दैट देन इट्स सो इन्फेक्शियस कि वो बच्चों में भी वो बोरिंगनेस आ जाती है. एंड लाइफ इज नॉट अबाउट यू नो गेटिंग बोर्ड एंड यू नो. सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी फाइट है कि एजुकेशन में सब बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग ही अच्छा कर सकते हैं. तो आई थिंक अब लोगों ने हमें सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया है. सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वी फील. मतलब ग्रे हेयर इज एक्सेप्टेबल, ब्लैक हेयर हैज सम रेसिस्टेंस, नो हेयर का तो कोई स्कोप ही नहीं है. No hair fit into everything. they are age you know irrespective. उन पे एज आती ही नहीं है. So that way I think a lot of people are blessed. तो ताश के गड्डी में जो जोकर होता है ना, वैसा फिट हो जाते हैं हम. Some lovely questions have come. What motivates you? I think anything that you know, there are a lot of things that motivate me. First of all, my mother-in-law motivates me, because she is like a, वो कहते हैं ना, charger होता है. So she's like my recharge button, you know. And she motivates me because she works you know, and she knows how to touch the heart of people. She knows how to value people and their work. She has that keen eye and observation. And मुझे लगता है that even at the age where she is, she works for the community. कुछ भी हो वो हर एज ग्रुप में फिट हो जाती हैं. तो मुझे लगता है ये चीज बहुत मोटिवेटिंग है. और मेरा काम मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है. बिकॉज यू नो, एक छोटा बच्चा जब आके मॉर्निंग में you know compliments you, and they say you know that ma'am, you know your color is good, and you know your you know speech was good, or your activity was very interesting. You know, that motivates. So I think children motivate you, youngsters motivate you, my family motivates me. Wow, brilliant. हमारे पूना में एक साधु वाशवानी मिशन है. सिंधियों के वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं. He has changed the terminology in the Sindhi community. Okay. आप कोई भी मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ नहीं बोलोगे. अच्छा. मदर इन लव और डॉटर इन लव बोलोगे. ठीक है. I totally agree. I'm very happy with this. I'm totally in love with my mother-in-law. So mother-in-law for sure. मतलब कितना प्यारा हो जाएगा ना माहौल और पूरा सब चीज. अगर बोलेंगे ये मदर इन लव है मेरी, ये मदर एट बर्थ है. And she is also saying she is my daughter in love. Yeah. How beautiful. How beautiful. It is. I love what you said, that you cannot run a school unless you are a student. Yes.
then you feel what the student is, what he is going through, and it's such a very beautiful and deep thing. Two questions have come, and I think both of them are very beautiful questions. What values do you carry in your work, or what is the work value that guides you in big decisions, complicated situations? तो ऐसी कोई work values या philosophies हैं? बहुत है. हमारी संस्था का अपना एक चार्टर है जिसपे हम सारे टीचर्स चलते हैं. और वैल्यूज एक्चुअली आप जब आपकी परवरिश होती है, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एंड स्मॉल टाउन वेरी बेसिक अपब्रिंगिंग, वो आप में एनीवेज बहुत वैल्यूज डाल देती है, बिकॉज यू लिव इन अ रियल वर्ल्ड. और डिफिकल्टी ये है कि आज के टाइम में इट इज सो डिफिकल्ट टू स्टिक टू दोज वैल्यूज. और बीइंग अ टीचर, आपको सिर्फ वैल्यू की बातें नहीं करनी है, आपको उनको जीना है, अपनी लाइफ में डालना है, और आपने उनको बिलीव करना है, और वही चीज आपने नेक्स्ट जनरेशंस को पास ऑन करनी है. तो बहुत सी वैल्यूज हैं, जैसे कि हमारी संस्था जो है, we ensure ki we don't have any donations in our organization, so admissions are purely very transparent. Then we try that we have 25% students from the economically weaker section studying in our school. So ये सब करने में honestly बहुत दिक्कतें हैं, but by the end of the day you're very happy. आपको खुशी मिलती है, इतनी lives को आप बदल पा रहे हो, आपको God ने इतनी blessings दी हैं कि आप कुछ कर पा रहे हो. So मुझे लगता है कि ये values आज के जमाने में when everything is shortcut, जिसको देखो वो बस quick conclusions पे आना चाहता है या quick output expect करता है. Life is not like that. तो उस अपने values पे नहीं टिके तो फिर आप क्या इंसान हो, and commitment and credibility is very very important in today's life. I think ये दो values जो हैं, अगर आपकी credibility ही नहीं है, so you keep flaunting and you keep talking about yourself, और आप कुछ भी promise कर दो, आप कुछ भी कह दो, it doesn't make sense at all. So जो आप कह रहे हो सोच के बोलो, और जो कह रहे हो वो deliver करो. So आज की सच्चाई, honesty, integrity, culture, ये सब चीजें values बहुत जरूरी है. इसके बिना हम क्या हैं? We are nothing. Wow. If you were 20 years old today, how would you look at life? I'm very young. I'm a kindergartner. You can treat me like that. And I look at the life same way had I been 20 years younger. So I'm young now, yeah. Okay. Was there a time in your life when somebody did not believe in you and you had to go through a struggle and then you reached where you wanted to reach? कभी ऐसा मुकाम है आपके जिंदगी में? बहुत है. I think life is full of such kind of situations. As I just mentioned, सबसे पहली चीज तो ये that I come from a place where at that time girls used to get married very early. And पढ़ता ही नहीं था कोई, जिसको देखो बस the ultimate aim was to get married. वो mindset से fight करना, and even if your parents are very supportive, and my parents have been very very supportive for my education and all. But the society, when a girl is born, everybody says, doctor banega, lawyer banega, teacher banega, whatever. And the day, she starts growing up, the parameters change, and the girl wonders, कि क्या हो गया? अभी तो पढ़ाई की बात हो रही थी, अब suddenly success को देखा जाता है through marriage, और success को देखा जाता है, for लड़के के case में देखा जाता है how well settled the guy is. But it is not the case, we are not. World doesn't work in a scripted format कि सब ऐसे ही चलेगा. It is not like that. And वो mindset change करना कि कोई बंदा PhD कर रहा है तो अरे तो PhD करने वाले की तो शादी बड़ी लेट होती है. These kind of things is a daily fight which so many youngsters I am sure they face, and specifically girls. लड़कियों के केस में तो even if they do the best, they top in the university or whatever, but still people will ask me, shadi ka batao. So the mindset of the community needs to change, and we just can't be judging people. So this is one of the obstacles that I have also faced being from a small town, and no matter how hard I used to work, but everything used to boil down to, okay, whom are you getting married to and when are you getting married to?
So this is something, you delineate from your vision and your promises. So that's one thing. And then even, in day-to-day life, running a school, getting that faith of people, helping students, fighting out battles, parents fight with the child's fight. I think it is so much of a turmoil that happens. So there are obstacles, and the life is full of that. So one should keep learning from all this. And also, I think, as I told you, young people cannot run schools, or young people cannot do this or do that, and they're novice and they're inexperienced. But inexperienced को experience नहीं देंगे तो वो हमेशा inexperienced रहेगा. So these are the important points. And इतना important है experienced लोगों को नए लोगों को chance देना, I think, because तभी the youth will have better opportunities. So experience, when people come for interviews and jobs and all, I always say, if you are a novice, this is so good, because आप एक raw slate पे फिर कुछ भी लिख सकते हैं. You're easily, we can train you, we can add value to you. You're not, fixed in your thoughts. So flexibility is more. So I think we should hire more young people. We should believe in them, have faith. These are the important things, I think. The biggest obstacles, I think, a lot of youth must be facing till now. आपके पास तो experience ही नहीं है जी, तो हम आपको क्यों रखें? तो फिर अगर आपने मेहनत ही नहीं करनी, तो फिर आप भी हमें मत रखो. So I think it has to have that. The mindset needs to change. This is the biggest obstacle. So, Niyati, taking off from what you said, now and then when these obstacles are there, ये जब लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, sometimes the lie is not about am I capable or not, but I don't want to give you an option because of A, B, and C different reasons. तो ये जो लड़ाई होती है, उसकी वजह से कभी-कभी इंसान अपने आप को थोड़ा मायूस पाता है, थोड़ा लो पाता है. And in an education world, this might be quite more frequent, because sometimes parents आपको नहीं समझते. आप जो करते हो उसको वो रेसिस्ट करते हैं. Right. नया लाना है तो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है. कुछ छोटी सी चीज हो गई, उसके ऊपर थोड़ा बवाल हो जाता है. जैसे मेरी वाइफ जो है, वो आज उनका बर्थडे है, बाय द वे. Oh, happy birthday to her. Now, she is a teacher in an IB school called Symbiosis in Pune. She's an art teacher over there. And she says, Naren, if the child falls down and I pick up the child, chances are the parents will say, why did the teacher touch my child? We are supposed to ask permission from the child कि बेटा आप नीचे गिरे हो, मैं आपको छूऊं, आपको ऊपर उठाऊं, क्योंकि ये बच्चों का इशू नहीं है, ये पेरेंट्स का इशू है. तो इतने बार अगर आप कोशिश कर रहे हो कि कुछ अच्छा देना है, बच्चों के लिए कुछ विजन है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है जिससे ब्रेक थ्रू हो सकता है, और जिनको फायदा हो वो ही रेसिस्ट कर रहे हैं, और वहां पे जो एक मायूसता आती है, इसको आप कैसे हैंडल करते हो? आई थिंक ये सभी स्कूल, सभी टीचर्स आजकल फेस कर रहे हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट और सॉरी सिचुएशन है. बट मुझे एक चीज ये लगती है कि स्कूल भी एक तरीके की पेरेंटिंग है, और आप बच्चे को पाल ही नहीं सकते जब तक आप और टीचर इकट्ठे मिलके उस पे काम नहीं करेंगे. सो मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे पास ये एक धागा है, और अगर आप एक सिरा पकड़ के बैठे हैं और दूसरा सिरा आप छोड़ देते हैं, तो वो धागा सीधा नहीं होगा, तो शेप नहीं होगा. तो इसीलिए स्कूलिंग भी एक तरीके की परवरिश है, और जॉइंट परवरिश है, को पेरेंटिंग है. तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स को विश्वास नहीं है स्कूल में और अपना बच्चा देने में, तो उनको उस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई टेल पीपल कि अगर आपको यकीन है, अगर आपके मन में फिर ऐसा है ना कि देखिए, बच्चा घर में भी गिरता है, मदर से भी गिरता है, तो अगर कोई ऐसे कर पाएगा तो टीचर विल नेवर बी एट ईज. और आपको मैं यकीन दिलाती हूँ, कोई भी टीचर कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को चोट लगे. ना कोई जान के करेगा, ना कोई प्लान करेगा या तंग करेगा. आई डोंट थिंक सो. टुडेज स्कूल्स आर वेरी डिफरेंट. आज सब चेंज हो गया है, इन द सेंस दैट I find great chemistry between students and teachers. I mean, I have fantastic chemistry with my students. So मुझे लगता है कि I can have fun, I can talk to them about anything, I can help them out in their performances.
my team makes sure that they are always high on energy when they come, and they leave with happiness when they go home. So aaj ka time mein, nobody should even think of all the, you have to have some trust. Every relationship has trust as a base. So ye kaise chalega, so I should rather recommend them not to take admission in that school. Very, very deep thoughts what you said when you say that schooling is a kind of joint parenting, and Right. the metaphor you used was that string धागा. Right. अच्छे से पकड़ेंगे तो कुछ अच्छा मजा आएगा, पकड़ा जाएगा, yeah. छोड़ दिया तो लटकते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर. The second is अगर एक दूसरे के ऊपर हम डाउट करते रहें, मतलब कोई भी रिश्ता नहीं चलता ना जहाँ डाउट है. Right. तो अगर माँ बाप बच्चों को स्कूल में सुपुर्द कर रहे हैं, तो या तो ट्रस्ट के साथ करो या उस जगह भेजो जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो. और स्कूलों की भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक हम सब टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रस्ट बनाए रखने में. हाँ. तो अगर कोई गलती होती भी है, गॉड फॉरबिड, तो सबसे बड़ी चीज इसमें ना ऑनेस्टी रहती है कि आप सच्चाई से बता दो जी कि मुझसे गलती हो गई. एक्सेप्ट कर लेना, अपनी गलती मान लेना, और पेरेंट का सपोर्ट करना, ये भी उतना ही जरूरी है. सो ये धागे दोनों समझदारी के धागे होने चाहिए, नहीं तो थ्रेड डोलता रहेगा. When you spoke about values and we use those words ना, commitment and credibility, तो स्कूल की तरफ से अगर ये commitment और credibility रहे और पेरेंट्स की तरफ से अगर ट्रस्ट रहे, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा और इससे बहुत अच्छी चीजें होंगी. बिल्कुल बिल्कुल. I have students जब पेरेंट स्कूल पे ट्रस्ट नहीं करता और उसको मालूम है कि पेरेंट की और स्कूल की नहीं बनती, the child knows about it. तो I have cases like बच्चा घर में बैठा है और मदर पूछ रही है कि बेटा तो स्कूल नहीं गया, तो मम्मा स्कूल में तो आज छुट्टी है, एग्जाम की प्रिपरेशन है. बाय चांस पेरेंट स्कूल आता है कुछ फीस देने या क्या करने, एंड द पेरेंट सेज जी आज तो छुट्टी है पर स्कूल में तो बच्चे आए हुए हैं. तो बच्चा झूठ बोलता है क्योंकि उसको मालूम है कि स्कूल की और पेरेंट की नहीं बनती. So, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है ना कि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो, कुछ हो, talk to the parent and teachers. They need to talk to each other. They need to be each other's confidant. Make sure कि इसका फायदा, गलत फायदा बच्चा ना उठाए, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशंस खराब हो जाएंगी. हाँ, वो जो अपने यहाँ जातका तेज में पंचतंत्र में बहुत पुरानी कहानी है ना कि दो बिल्लियां झगड़ती है रोटी के लिए, एक बंदर आता है. वेरी ट्रू. बिल्कुल कुछ इसी तरह का ना. बिल्कुल बिल्कुल. A very important and a deep question, and I think you are in a brilliant position to answer this. आप इन युवकों को क्या बोलोगे कि कल के दिन जब उनकी आगे जाके शादी होगी कि आपकी बीवी को, आपके लाइफ पार्टनर को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? मतलब what does a woman require from a man, from her husband as a part of support for her to actually fly and live to her potentials? Is it required or is it not required? I think the only thing that a woman requires from maybe her husband or her father or brother or whosoever or colleague at workplace is acceptance. That a woman can be more capable, woman can be an achiever, can achieve better than a man. And it is not gender specific. Anybody can achieve. So, we need to get rid of this gender biasness and perceptions that, our society is engaged in. So, acceptance is important. And acceptance hogi, tabhi appreciation hogi, tabhi acknowledgement hogi, tabhi support hoga. So, और कुछ नहीं तो कम से कम acceptance is the most important thing. Rest, everything will fall in place, I guess. You have this knack of making very complicated things very simple. And I'm truly glad how you have been able to put light on some very complicated things in a very simple way. So thank you so much for that, Niyati. I have done this diploma in cosmetology during my, college days. And since a lot of youngsters are watching this show, I would like to share my experience of how I used to study. And along with that, I used to participate in a lot of activities during my college days. और जब वो time होता है जब students अपना time waste कर रहे होते हैं इधर उधर बेकार की चीजों में,
I used to make sure that every minute of my life at that point of time must be very constructive. So मैं क्या करती थी कि जैसे मैं 12th में गई तो मैं 11th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी. Wow. और जब मैं 11th बीकॉम में थी तो मैं उसे एक क्लास पहले वालों को ट्यूशंस पढ़ाती थी घर पे. And I used to earn my own pocket money. So this was one thing which I've been doing since the day I was born. So I've used to trade, I've taught all my neighbors and also मैंने उस चीज से बहुत सीखा है. और दूसरा पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर्स. पीपल से अरे पढ़ते रहो, ये एक्टिविटी से तो कुछ फायदा ही नहीं होता, अटेंडेंस नहीं मिलती एंड ऑल दैट व्हाटएवर. आई वाज द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल एंड मैंने हर चीज में पार्टिसिपेट किया है. और जब छुट्टियां आती थी आई यूज्ड टू डू दीस स्मॉल कोर्सेज, जो छोटे छोटे कोर्सेज होते थे जो मेरी पढ़ाई से डिफरेंट फील्ड के होते थे. जैसे आई डिड माय एमकॉम एंड देन आई डिड माय बीएड एमएड पीएचडी, बट आई आल्सो डिड ई-कॉमर्स. Then I also did diploma in cosmetology. तो मैंने अलग अलग चीजें की because लाइफ का कुछ नहीं मालूम कब क्या चीज काम आ जाए. and अगर मैंने वो नहीं की होती तो I wouldn't have settled in whatever work I'm doing now. So I think constructively engage होना इतना जरूरी है. Instead of wasting your time and precious years of your life, आप कुछ कुछ छोटा छोटा अलग अलग जरूर ट्राई कीजिए और करते रहिए. और वो जो कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा है, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस, इट टॉट मी हाउ टू ब्यूटिफाई थिंग्स. हर चीज जो खराब है, बिखरी हुई है, उसको संवारना, उसको ब्यूटिफाई करना. तो कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको इजी करना, ब्यूटिफुली प्रेजेंट करना. आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम देयर. Wow. In 1999, I met a person whose name is Ravindranath Sharma. Okay. Hardcore Punjabi. Okay. But he was staying in Pune and we were staying in his home for 1 year. एक दिन वो भारती, my darling wife, he calls her and says, बेटा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी अच्छा खाना बना सकता है, लेकिन जो इंसान बिगड़े खाने को अच्छा बना देना, कुक हम उसी को बोलते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. So I sense the same thing in you when you're saying what you're saying. Success भी इसी का नाम है कि जब आप कुछ नहीं में से कुछ क्रिएट करते हो, that is success. So one question which often comes from students is, when I want to follow one path and my parents think this is not the right one for me, are there any tips by which I can convince my parents, allow me to follow what I believe is my passion? This is a problem that we face a lot, specifically when the career choices are made. उस टाइम पे आई थिंक हम लोगों को लगता है कि वी आर लाइक दोज वो होते हैं ना, आर्बिट्रेटर्स बन जाते हैं. हम पेरेंट की सुनते हैं, एक साइड बच्चा बैठा है, दे आर फाइटिंग एंड a child is saying I want to be an actor and the parent is saying he must be an engineer. But इसमें मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं. मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप अपने आप से ये सवाल पूछे, और ये सारे यंगस्टर्स के लिए है जिन्होंने करियर्स डिसाइड नहीं किए हैं, जब कल को आप पेरेंट बनेंगे, क्या वो रिस्क्स जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं आप अपने बच्चों को लेने देंगे? पहला क्वेश्चन ये है. सेकंड ऑफ ऑल, पेरेंट अगर किसी चीज के लिए सजेस्ट करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास ये 15-20 साल जब उसने बच्चे को पाला है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कुछ डेटा है, जिसके वजह से पेरेंट कहता है कि ये एक प्रोफेशन मत लो, ये लो, तुम्हारे लिए ये अच्छा है. राइट? जब बच्चा करियर डिसाइड करता है वो अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के बेस पे करता है. अब इसमें दो चीजें हैं. क्या उस बच्चे ने कोशिश की है वो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने में वो मेहनत की है? I have had a student जिसको एक्टिंग करनी थी, right? And the parent was like, no, हमारी तो lawyers की family है, and हम तो हमारा next generation is also supposed to be a lawyer, right? And parent की तरफ से था कि क्योंकि एक्टिंग है जी, कैलकुलेटेड रिस्क बहुत जबरदस्त है एक्टिंग फील्ड में, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नेटवर्क्स नहीं है, and it is pretty, पेरेंट का पर्सपेक्टिव समझ में आता है. अब बच्चे की जिद समझ में आती है, लेकिन क्या बच्चे ने कभी कोई एक्टिंग की तैयारी की, कभी कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, कभी कोई ट्रेनिंग लिया? सो अगर आप अपना करियर डिसाइड करना चाहते हैं विदाउट एनी बेस, you're actually taking a big risk, which no parent ideally
would allow, अपने बच्चे को कोई कुएं खाई में नहीं फेंकने देना चाहता। बिल्कुल। तो इतना इम्पोर्टेंट है वो पेरेंट के सजेशन और पर्सपेक्टिव को भी समझना। हाँ। और दूसरी चीज ये कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको वो चीज पेरेंट को शुरू से दिखानी पड़े। अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो उस लेवल का म्यूजिशियन का परफॉर्मेंस और मेहनत पेरेंट को दिखेगी, तभी वो टाइम, मनी, फेथ, इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। अब आप करना कुछ नहीं चाहते और आपका बस ड्रीम है, फिर आप कल को म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन भी कर लेंगे, इट विल नॉट एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू। सो दैट इज व्हाई लोग लेटेस्ट स्टेजेस पे कई बार बहुत करियर्स चेंज करते हैं, बिकॉज उनको समझ नहीं आता। अपना स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सो जितने यंगस्टर्स ये शो देख रहे हैं, प्लीज अपना स्वॉट एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखते हुए करियर डिसाइड करो। पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव्स जो हैं इग्नोरेबल नहीं होने चाहिए, पर एट द सेम टाइम पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है दैट आप अपने ड्रीम्स का बोझ अपने बच्चों पे नहीं डाल सकते। कुछ चीजें डेस्टिनी की हैं, आप बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं, आप बच्चों को शेप कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चे का भाग्य नहीं बना सकते। सो वो चीज छोड़ दीजिए। एंड यू कांट बी कंप्लेनिंग एवरी टाइम, बिकॉज कुछ तो बच्चे में भी होगा जो वो इतनी जिद कर रहा है। तो दोनों को थोड़ा समझना पड़ेगा, तो टॉक इट आउट अमंग्स देमसेल्व्स। It's a very deep and again a very wise set of words when you say कि अगर बच्चा चाहता है म्यूजिशियन बने या ड्रामा आर्टिस्ट बने या एक्टर बने, तो उसने कभी कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, कभी कोई एक्टर्स के साथ बातचीत की, कभी जाके 10 थिएटर देखा, वहां पे इंटरेक्ट किया, कभी थिएटर के बारे में, इम्प्रोव्स के बारे में स्टडी की। क्योंकि अगर थोड़ी हिस्टोरिकली वो इंटरेस्ट, वो कमिटमेंट और वो डेप्थ नहीं दिखता है, तो माँ बाप फिर अपने आप होके कैसे बच्चे को बोले कि हाँ कोई बात नहीं, तुम चले जाओ उस फील्ड में। Narendra, I have a case study of a child जिसने 10 साल, he was a best sports person, वो क्रिकेटर बहुत अच्छा था, और 10 साल उसके फादर सुबह उठ के उसको क्रिकेट फील्ड में लेके जाते थे, एंड एवरीबडी इन द स्कूल यूज्ड टू फील कि ही इज लाइक अनदर युवराज सिंह, सो गुड इन प्लेइंग क्रिकेट। एंड उसकी डाइट अलग होती थी, उसके एग्जाम की तैयारी अलग होती थी। सो वन डे ही कम्स टू माय ऑफिस एंड आई आस्क हिम कि बेटा आप क्या करना चाहते हो? ही सेड आई वांट टू बी अ डॉक्टर। So I said, you want to be a doctor and you are spending your entire day on doing something else. He says मेरी हॉबी है वो। So if that is your hobby, तो आप दिन में 30% टाइम अपनी हॉबी को दीजिए, बट 70% टाइम उस चीज को दीजिए जो आपका करियर है फ्यूचर में। तो अगर आपका ध्यान बनना डॉक्टर है, पर आप मेहनत सारी कुछ और में कर रहे हैं, so this is something which is extremely तो ये थोड़ा सा आई थिंक ये हम सब फेस करते हैं अपने टाइम में, समझ नहीं आता, बट इम्पोर्टेंट है इंट्रोस्पेक्ट करना। ब्यूटीफुल। नियति, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू। आई हैव मेड एग्जॉस्टिव नोट्स फॉर माई सेल्फ ओवर हियर, आई विल शेयर विथ यू ऑल दैट आई लर्न। थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग योर माइंड एंड योर हार्ट टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। I'm sure all the children who are here are very, very blessed, and I can't express in words how much they would have learned, they would have grown, and they would have enjoyed this session. Thank you. Thank you so much. Thank you. I'm truly honored. Really enjoyed. And all the best to all of you. I think you guys are doing a fantastic job. Thank you. So this summit will be memorable. Yes. Thank you. Yes. Thank you so much. Bye. Bye. Bye, Parul. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye.